Hello students, today we'll see the next part of journal entry. Topic number 3, generalize the following transactions. Into this topic, we see the how to pass entry into journal. We see the how many steps are followed when you pass our entry into this journal. So into this lecture, we discuss again pro forma of journal and some important steps are generalizing the entries. What is generalizing? Generalizing means entry pass into the journal. It is called generalizing. It is called posting. How to pass the journal entries into this topic we discuss. But before we see these questions, chapter number 3, journal entry, इसे पंजी या रोज कृत कहा जाता है. Asking question number 2 and question number 3 is going to 10 marks. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये क्वेश्चन आता है हमेशा 10 मार्क के लिए. तो अकाउंटिंग अपने देखे, इसके पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट सबका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग के आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस. इट इज आर्ट, इट इज अ साइंस. बट इनटू दिस लेक्चर वी सी द हाउ टू राइट आवर अकाउंट्स इनटू दिस जनरल, इनटू दिस रोजकिर्द. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing the financial transactions and interpreting the results. Into these transactions, we see our transactions are recording, our transactions are classifying, and our transactions are summarizing the financial transactions and interpreting the results. We see the results on these when you make pass the transactions. We see the results of our business. So accounting is a recording process. Accounting is a classifying process of our transactions, summarizing the data and interpreting the results. Therefore, accounting cycle involve the following steps. Accounting cycle में जो steps आपके हैं, उसमें first steps आपके हैं recording. Recording of transactions means posting the entry into the journal. रोज की में entry post करना, write down करना. Generalizing the entry. So what is general entry? General entry means the entry made in general. Entry made in general. इसमें जो आप entry लिखते हैं made in general is called as general entry. उसे general entry कहा जाता है. So general entry, how to pass into this format, into this decimal, we see into this lecture. So the first step is recording transactions into the journal. Second stage, classifying the transactions. Transactions का classification आपको करना है into the ledger and summarizing the transactions into respective accounts, trial balance, profit and loss account and balances. And step number 4, interpreting the result. Interpreting the result of various accounts. ये different types के accounts आप open करते हैं, अलग अलग types, purchase account है, sales account है, etc. name persons account है, properties account है, assets account है, liabilities account है, capitals के different types जो उसके जो accounts आप maintain करते हैं, we see the interpreting of the results in various accounts. When balancing the ledger, we see the result of our transactions. So it is a book of in which the transactions are recorded. ये जो book है, it is a book of recording business transactions. It is called journal. Journal means day-to-day transactions we are written into this book. So it is a original book of our accountancy. So generally is called as book of original entry, book of primary entry. इसके पहले के लेक्चर में आपने देखी है. इसलिए the steps of accounting, which step आपके first step है कि recording the transaction, second है classifying the transactions, summarizing the transactions and interpreting the result of our various accounts. It is a book of in which the transactions are recorded into the journal, and first of all under this double entry book system. Thus, journal is the book of original entry recorded into this book, and generally does not replace but precedes the ledgers. The process of recording transactions in general is a term as generalizing.
So how to steps of generalizing? Generalizing की steps क्या है? We see in next point. The steps of generalizing. How to pass entry? These are the most important steps. When you pass your entry into this general, जब general में आप entry pass करते हैं, so how to pass entry into this general? We see the steps. So this term of general entry that is called generalizing. Generalizing means general is the book of ordinal entries. The entry made in the general is called generalizing. An entry. What is generalizing? Generalizing means an entry made in the general. Entry made in the general is called generalizing. Generalizing. That is the simple sentence we discussed. An entry made in the general is called generalizing. So general is a book of primary entry, a book of original entry. We see the generalizing, we see the specimen of general. In the books of specimen of, again we see specimen of general. जनरल का जो स्पेसिम आपका है उसमें इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द फॉर्म जो आपको दिया था जनरल एंट्री, जनरल एंट्री आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. पहला कॉलम आपका डेट का, पर्टिकुलर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, आपको स्पेसिम ड्रॉ करना है. यहां से आप लेजर को ट्रांसफर करते हैं, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. इंडिया में करेंसी रुपी है इसलिए रुपीज का कॉलम आपको. दैट इज द स्पेसिम ऑफ जनरल. ये जनरल क्या है? स्पेसिम है. डेट कॉलम में आप ईयर, मंथ एंड डे लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 17 मार्च 2021 ये डेट है सब आपको ट्रांजेक्शन की. हाउ टू जनरलाइज द एंट्री इनटू द जनरल. एंट्री मेड इनटू द जनरल. जब एंट्री आप मेड करते हैं, एंट्री फॉर एंट्री, एंट्री मीन्स नोट, एंट्री मीन्स ट्रांजेक्शन आप बोलते हैं. सपोज started business with cash rupees 50,000. एक एग्जांपल आपका है. डेट सपोज उसकी है 27 मार्च 2021. ये ट्रांजेक्शन आपको दिया. स्टार्टेड बिजनेस में, बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000. We should follow the rules of personal, real and nominal accounts. We identify the entry first. And the steps of generalizing the entry into this, posting into this general. How to pass entry into this format. Monthly format. Our accounting year कौन सा आपका? ये आपको ध्यान में रखना है. आपका अकाउंटिंग पीरियड जो आपका है या उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है? जिस दौरान आप अकाउंट लिखते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 31 जनवरी टू 31 मार्च. 1 April to 31 March is our accounting year. Into this period we write down our accountancy records. इस पीरियड में क्या करते हैं? आप आपका अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते रहते हैं. So, how to write our accountancy records into this general? Because it is a prime entry which we write down into this general. Original entries में लिखते हैं. Original entry. इसलिए original book of accounting. It is the first book. ये आपका first book है. इस first book में आप original entry पास करते हैं. इसे general कहा जाता है.
हाउ टू पास एंट्री इनटू द जनरल. सो फर्स्ट एग्जांपल आप देखते हैं 27 मार्च 2000. डेट लिखेंगे, डेट की जगह बाद में ट्रांजेक्शन रीड करेंगे. ट्रांजेक्शन रीड करते वक्त आपको केयरफुली रीड करना है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000. 50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी आपके पास जो कैश था, जो अमाउंट आपके पास कुछ था, उसने आपने क्या किया, वो बिजनेस में लगाया. तो वो कैश है. मगर जब आप बिजनेस में एक आधा कैश पैसा आप लगाते हैं, कैश देते हैं, इट इज कंसिडर एज आवर कैपिटल. वो आपका भांडवल होता है, वो आपका कैपिटल होता है. इसलिए इट इज आवर लायबिलिटीज. कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटीज. विच इज द क्लासिफिकेशन अकाउंट. लायबिलिटी होती है कैपिटल. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस लेजर, इनटू दिस जनरल. जनरल में एंट्री किसी पास की जाती है. सपोज ये आपका बिजनेस है, बिजनेस कंसर्न, ये आपका शॉप है, ये आप स्टार्ट करने वाले हैं, और आप खुद है ओनर, ये आप खुद प्रोपराइटर है या ओनर है. वेन यू स्टार्ट बिजनेस, आपके पास कैश है. कैश किसके पास, कितने है आपके पास? 50,000 रुपीज कैश है. ये बिजनेस आपको रन करना है, चलाना है. विदाउट कैपिटल बिजनेस आपका रन नहीं होता है. कैपिटल प्ले मेजर रोल इन आवर बिजनेस. बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए कैश आपके पास कितने? 50,000 है. आपने ये बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया आपने, इन्वेस्टेड इनटू आवर बिजनेस. आप शॉप डालते, शॉप में आपने बिजनेस इन्वेस्ट किया. तो 50,000 जो आप शॉप के लिए लगाते हैं, उसके लिए जो इसी आवर कैपिटल, ये आपका कैपिटल होता है. आपने कैश लगाया, मगर बाद में जो आप उसको कन्वर्ट करते हैं शॉप में, इट इज आवर कैपिटल. कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं. इसलिए व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट. आपके कैश, आपके जेब में से कैश क्या जा रही है? बिजनेस के लिए जा रही है, यानी कैपिटल बोल के आप उसको आप खर्च कर रहे हैं. तो इस एंट्री के अंदर आप देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. 50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किए. आपके अकाउंट्स के रूल्स आपको मालूम है. व्हाट इज पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट का रूल्स, नॉर्मल रियल अकाउंट का रूल्स एंड नॉर्मल अकाउंट का रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out. And normal accounts, what is normal accounts say? Debit or expenses and loss and credit or gains and income. Debit credit rules which we follow the golden rules when you pass each and every entry, which will help on these rules. Most important rules which we follow into this. When we see the started business with क्या, जब आप बिजनेस आप स्टार्ट किए तो 50,000 रुपीज जो आपके पास कैश थे, उसने आपने क्या किया? बिजनेस में लगा दिया. तो कैश आपके पास से जा रही है, क्या बोल के जा रही है? कैपिटल बोल के जा रही है. एंट्री किस तरह होती है आपकी, वो आपको यहाँ पे देखना है. इसमें हाउ टू पास एंट्री दिस एंट्री. कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि आपके पास कैश अकाउंट, आपके पास कैश जो थी विच वी इन्वेस्टेड कैश इनटू दिस बिजनेस. सो हाउ टू पास एंट्री व्हेन द कैश इज कम टू आवर बिजनेस. उसको which accounts are debited, which accounts are credited, which is the which two accounts are involved into this transactions, which affect into this transactions we discuss now into this important concept book keeping and accountancy. इससे important concept आपके पास है, इसके बारे में डिस्कस आपको करना पड़ेगा. हाउ टू पास एंट्री व्हेन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000. 50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किए, इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू दिस बिजनेस. बिजनेस में आपने अमाउंट क्या किया? इन्वेस्ट यहाँ पे किए हुए. तो हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर into this concept we discuss now. So the accounting entry will be passed. कैश आपके पास आ रही, बिजनेस के में आपकी कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट. कैश आपके पास क्या आ रही, क्या बोल के आप खर्च कर रहे हैं? टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. फर्स्ट टाइम जो आपकी होगी दैट इज द डेबिट. विच अकाउंट्स आर डेबिटेड? कैश आपके पास बिजनेस से आपके आ रही है और कैपिटल बोल के आप उसको खर्च कर रहे हैं. सो स्टार्टेड कैश कम्स इन, प्रॉपर्टी इज गिवन यानी ओनर इज गिवन. आपके पास कैश आ रही है, कैश कम्स इन, प्रॉपर्टी इज गिवन. ये कौन दे रहा है? प्रॉपर्टी दे रहा है, यानी खुद आप कैश उसमें लागत आप लगा रहे हैं. इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 being started business with cash, invested amount into the business. ये अपने एडिशन being started business with cash,
इस तरह नरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन एंट्री, इट इज स्टार्ट मोड फ्रॉम बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग कैश अब क्लोज करना है। अब दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन आपको इस पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉ करना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इनटू द दिस फॉर्मेट जनरल में इस तरह आपकी एंट्री पास करते हैं। इसलिए 50,000 में आपने स्टार्ट किए बिजनेस में आप जब इन्वेस्ट करते हैं जैसे और कैपिटल आपका होता है, कैपिटल आपका खर्च आपका होता है, इसलिए कैश कम्स इन, कैश आपके पास आ रही है बिजनेस के अंदर, और प्रोप्राइटर इज गिवर, ये प्रोप्राइटर जो आपका गिवर है, टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड प्रोप्राइटर अकाउंट्स, प्रोप्राइटर अकाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट दैट ओनर दैट प्रोप्राइटर्स। सो कैश कम्स इन, प्रोपर्टी इज गिवर, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट आपका होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पर्सनल अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स, इट इज द पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट्स? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीव्ड क्रेडिट, जो रूल्स ऑफ क्या है पर्सनल डेवलपमेंट, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट व्हेन द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस। जनरली आपको यही ट्रांजेक्शन पहले आपको होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर, सो कैश अकाउंट आपका जो है आपका डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। इस तरह आपको एंट्री इसमें पास करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें जनरलाइजिंग जो होता है, स्पेसिंग ऑफ जनरल के बाद में जो स्टेप्स ऑफ जनरलाइजिंग आपके, so an entry made into the general is called generalizing। जब जनरल में आप एंट्री पास करते हैं उसे जनरलाइजिंग कहा जाता है। हाउ टू जनरलाइजिंग, वी शुड सी द फॉलोइंग स्टेप्स। एंट्री पास करने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। व्हेन यू सी द ट्रांजेक्शन फर्स्ट, वी सी द केयरफुली व्हेन यू पास योर एंट्री इनटू दिस जनरल, जब जनरल में आप एंट्री पास करते हैं तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस वे, वी शुड फॉलो generalizing entry, the steps of generalizing, steps of generalizing, steps of generalizing, जनरलाइजिंग की जो स्टेप्स है, सपोज आपका ट्रांजेक्शन से 27 मार्च 2021, वही ट्रांजेक्शन आप अगेन लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ये आपका बिजनेस है, ये आपका शॉप है, सपोज ये आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये ओनर है प्रोप्राइटर, ये आपको प्रोप्राइटर आता है, इट इज इन्वेस्टेड मनी 50,000 इसके पास कैश थी, सपोज 50,000 अमाउंट इज आवर कैश, invest into the business, it is our capital, it is the owner, आपका ओनर है, it is called another word proprietor, proprietor is giver आप बोलते हैं, it is the proprietor। How to generalizing the steps of generalizing step, जब आप एंट्री पास करते हैं, सपोज ये पहली एंट्री आपकी आप पास कर रहे हैं, हाउ टू एंट्री पास इनटू दिस जनरलाइजिंग, जनरल एंट्री जो आप करते हैं, जनरल एंट्री जो फॉर्मेट में हम जनरलाइजिंग करते हैं, जनरल एंट्री ये स्पेसिंग आपका है, पहला कॉलम का डेट का होता है, दूसरा कॉलम का पर्टिकुलर का होता है, तीसरा कॉलम छोटा सा आपको प्रिपेयर करना है एलएफ का, डेबिट अमाउंट टू रुपीज, क्रेडिट अमाउंट टू रुपीज, या एंट्री पास करते इसके अंदर डेबिट अमाउंट टू रुपीज, क्रेडिट अमाउंट टू रुपीज, जनरल डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट टू रुपीज, क्रेडिट। व्हेन यू जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस, जब एंट्री आप पास करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, इस ट्रांजेक्शंस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। सेकंड स्टेप जो होती है आपकी डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट, डिसाइडिंग आपको डिसाइड करना है, डिसाइडिंग the types of accounts involved, आपको डिसाइड करना है कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व उसमें, एसेट एंड
एज सर्टेन, आपको फाइंड आउट करना है एज सर्टेन व्हाट रूल्स आर अप्लाइड, व्हाट रूल्स, पर्सनल रियल नॉमिनल्स, ये कौन से रूल्स अप्लाई करना, व्हाट रूल्स आर अप्लाइड, कौन सा रूल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एज सर्टेन टाइम्स व्हाट रूल्स आर अप्लाइड, डिसाइडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, आपको डिसाइड करना है डिसाइडिंग अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, को डिसाइड करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये ट्रांजेक्शन की डेट आपको रिकॉर्डिंग करना है, सपोज 27 मार्च 2021, रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस आपको रिकॉर्डिंग करना है इसके अंदर, और पर्टिकुलर कॉलम रिटर्न एंड एंट्री, एंड पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम रिटर्न एंट्री आपको राइट करना है। एंड हाउ टू जनरलाइज द एंट्री, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसमें अकाउंट्स आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, कैपिटल अकाउंट है या कैश अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट कौन सा है, ये आपका रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट कौन सा है आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज अ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ये व्यक्ति होता है, प्रोप्राइटर ये ओनर होता है, इसलिए व्यक्ति का अकाउंट ये पर्सनल का अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट होता है। राम, श्याम, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, दैट टाइप्स ऑफ पर्सन जो आपके होते हैं, नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन आवर ट्रांजेक्शंस, दैट पर्सन इज आवर पर्सन, एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट्स, एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट्स, ऑल पर्सनस, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट्स आपके होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम एंड गेन्स होते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसके पहले मैंने इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स का वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट्स कैसे आइडेंटिफाई करना, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये आप देख लो उसमें। तो कैपिटल अकाउंट ये व्यक्ति होता है, पर्सनल होता है, प्रोप्राइटर होता है, ओनर होता है, ओनर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, so कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल सिंबल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड ओनर इज और कैश अकाउंट इज और रियल अकाउंट्स। इसलिए सेकंड स्टेप जो है, ascertain रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल्स, अप्लाई द रूल्स ऑफ पर्सनल कैश, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, क्रेडिट का, और पर्सनल अकाउंट्स का डेबिट का रूल्स, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का रूल्स आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको ये एंट्री पे होने वाली है। डिसाइडिंग द अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डिसाइड आपको करना है कि डेबिट what comes in, credit what goes down, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and loss and credit all gains and income। ये आपके अकाउंट्स के रूल्स है, पर्सनल रियल नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट what comes in, credit what goes out, and नॉमिनल अकाउंट डेबिट all expenses and loss and credit all gains and income। उसी में आप अप्लाइंग द फॉलोइंग द रूल्स ऑफ, देन वी आर डिसाइडिंग द टू अकाउंट। जब आप टू अकाउंट डिसाइडिंग करते हैं, ascertain डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो आपने कैश इन्वेस्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किए, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजैक्शंस। पर्टिकुलर जनरल में आपको एंट्री जनरलाइजिंग करना है, ascertain द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स, डिसाइडिंग अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास क्या जा रही है क्या आ रही है आपको डिसाइड करना है। बिजनेस में कैश आप लगा रहे हैं, कैश आपके पास आ रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डीआर या कैपिटल डीआर लिखा तो चलता है या स्मॉल डीआर लिखा तो चलता है। टू, एक वर्ड छोड़ के लिखना है, टू, टी कैपिटल आपको निकालना है, टू जो निकालना है आपको, ये तो चलता नहीं है, इसे टी कैपिटल आपको निकालना है, अल्फाबेट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के बाद सीआर लिखने की जरूरत नहीं, डीआर फॉर डेबिट, इट मीन्स डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखो 50,000, क्रेडिट में लिखना है, इसमें डेबिट कॉलम में डैश करो, क्रेडिट कॉलम में 50,000 लिखो। बीन डिसाइडिंग द अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, आपने डिसाइड किया। रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए, एंड पर्टिकुलर कॉलम रिटर्न एंट्री, पर्टिकुलर कॉलम में आपने एंट्री रिटर्न किए। नैरेशन आपको लिखना है, बीन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
बीइंग स्टार्टेड बिजनेस भी लिखा तो चलता है। अब दो पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपका पे हॉरिजॉन्टल लाइन which we do parallel lines which will drop into this transition one step 1 step 2 account to debit account to credit narrations and two parallel lines यानी 4 स्टेप्स आपको इसका कैलकुलेशन आपको करना है पर्टिकुलर कॉलम में। पहला है डेबिट क्रेडिट narrations and two parallel line are compulsory necessary to draw after ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद में खाली पर्टिकुलर कॉलम तक आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है बस बॉटम से, और बाद में नेक्स्ट डेट रहेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके कंटिन्यूस यहाँ पे चालू रहेंगे। 27, 28 मार्च, अप्रैल, 31 मार्च के बाद में क्या होता है आपका मंथ चेंज हो जाता है। आगे नेक्स्ट मंथ के 1 अप्रैल, मार्च के बाद में अप्रैल आता है, 1 अप्रैल के बाद और मई जून जुलाई यानी अकाउंटिंग ईयर जो आपका है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस अकाउंटिंग ईयर तक आपको क्या करना है, पूरे रिकॉर्ड्स इस जनरल एंट्री में पास करना है। डे टू डे ट्रांजेक्शंस वी आर रेड इनटू द डेट वाइज आपको पूरे ट्रांजेक्शंस लिखना पड़ता है इस जनरल एंट्री के अंदर। जंपिंग ट्रांजेक्शंस नहीं जमते, आज मार्च के लिखे बाद और जनवरी का पेपर, इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं होता है। डेली रिकॉर्ड्स वी आर मेंटेनिंग इनटू दिस जनरल, इसलिए इसको ओरिजिनल एंट्री बुक कहा जाता है या प्राइम बुक ऑफ आवर अकाउंटेंसी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर अकाउंटेंसी कहा जाता है। प्रॉपर ट्रांजेक्शंस वी आर राइटिंग इनटू दिस बुक द बेसिस ऑफ आवर वाउचर्स के बेसिस के ऊपर ये ट्रांजेक्शन आप पास करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस इनटू वाउचर्स में जो आपका अमाउंट होते हैं वो अमाउंट से आप एंट्री पास करते रहते हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपका आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन से दो अकाउंट्स इसके अंदर है। डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, कौन से दो अकाउंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें डिसाइडिंग द अकाउंट्स इन्वॉल्व, ascertain what rules are applied into these transactions, and deciding account to be debited, account to be credited, and recording the date in date column में date लिखो, particular में आप detail explanation about the transactions, debit, credit, narration and two parallel horizontal line, parallel line, समांतर लाइन आपको खींचना है particular column तक। तो particular column के लिए ज्यादा जगह लगती है, ज्यादा जगह आपको छोड़ना है। LF में आपको पान क्रमांक नहीं दिया जाता, रिटर्न एंट्री इनटू पर्टिकुलर कॉलम, इसे कहा जाता है एंट्री पर्टिकुलर कॉलम में राइट डाउन करना। एलएफ कॉलम का नंबर आपको दिया है, पेज क्रमांक आपका रहता है, लेजर फोलियो का पान क्रमांक आपको ट्रांजेक्शन में नहीं होता है, मगर जब प्रैक्टिकली आप वर्क करते हैं बिजनेस के अंदर तो आपको आपके लेजर्स अकाउंट का आपको नंबर दिया हुआ रहता है। आपने परचेस अकाउंट को नंबर सपोज 1 नंबर दिया, सेल्स अकाउंट को 2 नंबर दिया, तो राइट सेल्स की एंट्री तो सेल्स का एलएफ का नंबर आप लिखेंगे। इस एंट्री को कौन से अकाउंट्स में आपने ट्रांसफर किए उस लेजर का क्या करते हैं, नंबर आप मेंशन करते हैं एलएफ कॉलम के अंदर। अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी ये दो अकाउंट्स के जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट के वो इक्वल होना चाहिए, सेम टू डेबिट में जितने आपने लिखे सेम आपको क्रेडिट में आपको अमाउंट आपको पे बताना पड़ता है, टैली करके देना पड़ता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक। इसलिए द्वि नॉन पद्धति कहा जाता है। इसलिए द्वि नॉन पद्धति में जो अकाउंट आपका जिस अमाउंट से डेबिट हो रहा है उसी अमाउंट से आपका अमाउंट से अनदर जो आपका क्रेडिट से है वो आपका क्रेडिट होना चाहिए। सेम डेबिट में 1000 तो क्रेडिट में भी 1000 रुपये आने चाहिए। डेबिट में 50,000 से डेबिट हो रहा था, क्रेडिट भी सेम अमाउंट से आपका अमाउंट क्रेडिट साइड आपका क्रेडिट होना चाहिए उस अमाउंट से। दैट इज द रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का रूल्स यहाँ पे है जो इंट्रोड्यूस किया था। द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसको कहा जाता है? इंट्रोड्यूस इन 10 नवंबर 1494 लुका डी बार्को पेसियोलो। ही वाज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराई और आज जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ही मेंटेन किए जाते हैं। उसमें का जो पार्ट है अभी जनरल एंट्री विच वी सी इनटू दिस लेक्चर। सो इस तरह आपको एंट्री आपको जनरल में पास करना पड़ती है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेसियम एंड फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। एंट्री पास करने से पहले जो इंपॉर्टेंस की इसके अंदर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसका मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता जल्दी। और टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल तो वी शुड डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर्स। इसके जो फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरह लिखा जाता है ट्रांजेक्शंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, कौन सी एंट्री पास की जाती है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और बाद में एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट जो आपका है जनरलाइजिंग द फॉरेन ट्रांजेक्शंस एंड हाउ टू जनरलाइज द एंट्रीज इनटू दिस जनरल। इस जनरल में किस तरह एंट्री पास की जाती है वो आपको देखना है। जो कीज टर्म्स है इसमें से की टर्म आप उसे बोलते हैं की टर्म्स। जब कुछ का मीनिंग समझ में आ जाए JOURN जो जनरल आपका है, जनरल में उसे पंजी कहा जाता है।
पंजी या रोजकृत, उसे रोजकृत कहा जाता है। इसका ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री को कहा जाता है जो मूल आपकी नोंद होती है, मूल नोंद उसे कहा जाता है, एक्चुअल नोंद जो आपकी होती है। उसके बाद में नैरेशंस को कहा जाता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शंस। वैसे एलएफ मीन्स पान क्रमांक, ये आपको जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ करते हुए काम में आता है। एलएफ लेजर फॉर यू। कैट डिस्काउंट, बैड डेट्स, आपको इसका मीनिंग में बताया हुआ है। रब बुक, इंसॉल्वेंट, क्रॉसिंग चेक्स। इंपॉर्टेंस जो इसमें है एंट्री पास करते हुए, ओरिजिनल एंट्री यानी मूल नोंद जो आपकी होती है, जनरल जो होता है उसे पंजी कहा जाता है। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस बुक व्हिच वी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर फर्स्ट। तो जो इंपॉर्टेंस फंक्शंस आपके टुडे नाउ डिस्कस इनटू दिस जनरल एंट्री व्हिच टू पास, हाउ टू एंट्री पास इनटू दिस जनरल। एलएफ फॉर लेजर फॉर यू, डेबिट में आपको डेबिट अमाउंट राइट डाउन करना है, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट आपको राइट डाउन पे करना पड़ता है। इसके बाद में जो आप एंट्री, जनरल एंट्री के जो टाइप्स आपको देखना है, हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल व्हिच वी सी द स्पेसिंग ऑफ जनरल एंड सम इंपॉर्टेंट कांसेप्ट वी डिस्कस इनटू दिस लेक्चर। इसके बाद में जो देखना है एंट्री के बाद में, उसके बाद में डिस्कस करते हैं हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस कांसेप्ट। स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्रीज, स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्रीज के अंदर जो एंट्रीज आपकी हैं उसके जो स्टेप्स आपको दिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल। सो सिंपल जनरल एंट्री क्या होती है और कंबाइंड जनरल एंट्री क्या होती है, थोड़ा जो एग्जांपल आपने देखे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फ्रॉम ₹50,000 इनटू दिस ट्रांजैक्शंस वी सी हाउ टू पास एंट्री into when the transaction into this general, when transaction is given there. So we see the writing of general entries, types of writing of general entries. General entries का जो writing आपका होता है, writing of general entry, writing of general entry. जनरल एंट्री को जो राइट किया जाता है, टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री जो आपके इसमें टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री, टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की जो टाइप्स है, सिंपल जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री एंड कंबाइंड या कंपोनेंट जनरल एंट्री आपकी होती है। कंबाइंड जनरल एंट्री, कंबाइंड जनरल एंट्री, ये एंट्री आपको समझ में तो बाकी है। इसे कंपोनेंट जनरल एंट्री भी कहा जाता है, एकत्रित करना, एक से ज्यादा, बोथ अकाउंट्स आर डिवाइडेड एंड बोथ अकाउंट्स आर क्रिएटेड, कंपोनेंट जनरल एंट्री, कंपोनेंट जनरल एंट्री। तो सिंपल जनरल एंट्री जो आपकी होती है, सपोज फॉर एग्जांपल वी सी 27 मार्च आपको दी जाती है 2021 की, आपको डेट दी और ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप देखते हैं ये आपका बिजनेस है, ये आपका शॉप है, सपोज ये आप कस्टमर है, इट इज ओनर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनर। जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपके पास 50,000 क्या थी, कैश थे आपके पास। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें बिजनेस में आप लगाते हैं, शॉप में आप इस पैसा लगाते हैं, दैट इज आवर कैपिटल, ये आपका कैपिटल कंसिडर होता है। इसके पहले के एग्जांपल में आपने, इट इज ओनर, इट इज अ प्रोप्राइटर, ये प्रोप्राइटर, ये मालक आपका होता है, इट इज ओनर, इट इज अ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस में आप कैश लगाते हैं, कैश आपके पास से जाती है, कैश आपके पास बिजनेस में आ रही है, अपनी जेब में से कैश जा रहे हैं, कैश कम्स इन एंड प्रोपर्टी इज गिवन। किसने क्या किया है, दिए प्रोपर्टी ने, प्रोपर्टी इज गिवन, कैश कम्स इन, प्रोपर्टी इज गिवन, कैश कम्स इन इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज गिवन। यहाँ पे प्रोपर्टर आपका क्या है, गिवर है। तो इनटू दिस ट्रांजेक्शंस वी सी हाउ टू पास कंबाइंड एंट्री एंड हाउ टू पास सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री क्या होगी आपके पे, कैश अकाउंट डेबिट,
एक जनरल का फॉर्मेट आप प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे किस तरह सिंपल एंट्री पास की जाती है। ये आपका डेट का कॉलम, डेट में आप डेट लिखेंगे 27 मार्च 2021। पर्टिकुलर कॉलम में आपका डिटेल स्पष्टीकरण लिखेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डीआर, इस तरह लिखा जाता है। टू एक अल्फाबेट छोड़ के लिखना है, टू कैपिटल आपको निकालना है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। एलएफ का कॉलम आपको छोटा सा बनाना है, आपको ज्यादा बड़ा बनाना नहीं। डेबिट अमाउंट ऑफ रुपीज, ये डेबिट का कॉलम है, और बाद में आपका सेकंड कॉलम आपका क्रेडिट का होगा, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट इंडिया के अंदर अमाउंट रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट 50,000 आप लिखेंगे और 50,000 आप लिखेंगे। बी नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। टू पैरेलल आपको खींचना है, पर्टिकुलर कॉलम जो पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम तक टू हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे दो पैरेलल दो लाइन समांतर लाइन आपको खींचना है। दैट इज द सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में आप ऑब्जर्वेशन करने में आपको समझ में आता है कि वन अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट्स आर आल्सो क्रेडिटेड। सिंपल एंट्री में एक अकाउंट आपका डेबिट होता है और एक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, उसे कहते हैं सिंपल एंट्री या सिंगल एंट्री। सिंपल एंट्री में क्या होता है, एक ही अकाउंट आपका डेबिट होता है एंड अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट आपका होता है। दैट एंट्री इज कॉल्ड एज सिंपल एंट्री, उसे सिंपल एंट्री कहा जाता है। एंड कंबाइंड एंट्री में क्या होता है, बोथ अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड बोथ अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बिजनेस स्टार्ट के सब ये एग्जांपल आप लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस 27 मार्च 2021, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। गुड्स आपके पास था घर पे, गुड्स रुपीज 25,000। फर्नीचर आपके पास था, फर्नीचर रुपीज 25,000। फर्नीचर आपके पास 20,000 था, 25,000 था। एंड लैपटॉप आपके पास दुकान में, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप रुपीज 25,000। ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या था देखो। अभी ये आपका शॉप है, कॉमन एंट्री या कंपाउंड एंट्री किस तरह पास की जाती है, तो ये ओनर है, दिस इज प्रोप्राइटर, ये प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। उसके पास क्या था, कैश थी 50,000, गुड्स उसके पास था 25,000 का, फर्नीचर उसके पास था 25,000 का, लैपटॉप उसके पास 25,000 का। इसने क्या किया, जो कैश उसके पास थी, कैश और गुड्स उसके पास है, ही इन्वेस्टेड मनी इनटू दिस बिजनेस। कैश उसके पास है 50,000 की, उसके अंदर 25,000 का गुड्स है, 25,000 का फर्नीचर उसके पास है और 25,000 का लैपटॉप उसके पास है। टोटल कितने अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया शॉप के अंदर, 1,25,000, 1,25,000 अमाउंट आर इन्वेस्ट इनटू दिस बिजनेस। तो इनटू दिस ट्रांजेक्शंस कैश उसके पास है, गुड्स उसके पास है, फर्नीचर उसके पास है, लैपटॉप उसके पास है। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास की जाती है, व्हिच वी सी इनटू दिस। एंट्री का फॉर्मेट हम निकालते हैं। एंट्री आप देखते हैं हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस प्रॉपर फॉर्म। जनरल एंट्री हाउ टू पास जनरल एंट्री। डेट की कॉलम में डेट लेंगे 27 मार्च 2021, ये आपका डेट का कॉलम है, डेट। सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर्स, जिसका कॉलम आपका एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज। हाउ टू एंट्री पास, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डीआर, कितना है कैश आपके पास एज पर 50,000। गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स उसने लेके आया, गुड्स अकाउंट डीआर। उसने फर्नीचर भी लेके आया, फर्नीचर अकाउंट डीआर एंड लैपटॉप अकाउंट डीआर 25,000 एंड लैपटॉप के भी 25,000। बी टू कैपिटल अकाउंट एज सेम अमाउंट से आपका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। एक की टोटल कितनी डेबिट की 50, 1,25,000, 1,25,000। ये 50 से 50 सारे 1,25,000। being started business with cash with goods, furniture and laptop। और दो पैरेलल आपको खींचना है।
दैट टाइप्स ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री कहा जाता है क्योंकि बोथ अकाउंट्स आर डेबिटेड and both accounts are credited. So one account are credited into this entry. That types of entry is called as combined entry. Combined entry से कहा जाता है सिंपल एंट्री में क्या होता है, वन अकाउंट आर क्रेडिटेड, वन अनदर अकाउंट आर क्रेडिटेड। इसलिए बिजनेस जब आप रन करते हैं तो कैश हो सकता है या एनी काइंड में आपके एसेट्स हो सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ एसेट्स यू ब्रिंग फ्रॉम स्टार्ट योर बिजनेस। जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कैश भी हो सकती है और एनी काइंड ऑफ एसेट्स हो सकती है, आपके पास फर्नीचर हो सकता है या अनदर जो दुकान स्टार्ट करने के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं जो आपके पास हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो सकते हैं। इसलिए कैश अकाउंट एंड एनी काइंड वी सी इनटू दिस ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शंस के अंदर इस कस्टमर, इस ओनर के पास, इस प्रोप्राइटर के पास कैश था, गुड्स था, फर्नीचर था और लैपटॉप भी उसके पास था बिजनेस चलाने के लिए। उसने क्या किया, वो बिजनेस के लिए यूज करने के लिए बिजनेस में लगाया। तो दैट इज प्रॉपर्टी, उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज देयर कैपिटल ऑफ दैट ओनर। ओनर इज प्रोप्राइटर का उसका कैपिटल होगा। इसके कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, डेबिट होगा आपका कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट आर डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिट इनटू दिस टाइप। दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री के दो टाइप्स की जनरल एंट्री आपके एग्जाम में आती है, सिंपल जनरल एंट्री एंड कंबाइंड जनरल एंट्री। इस तरह आपको इस एंट्री को आगे अरेंज करना है। ये था आपका कंसेप्ट ऑफ जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस एंड जनरल एंट्री, हाउ टू पास इनटू दिस स्पेसिमम। उस नमूने के अंदर इस तरह ओरिजिनल एंट्री पास की जाती है। दैट इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आप जब देखते हैं लेजर, ये इसके बेस के ऊपर ही प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए अकाउंटेंसी के अंदर जो टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जनरल एंट्री, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, दैट इज द स्टेप्स ऑफ और एंट्री ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज द साइकिल ऑफ अकाउंटिंग उसे कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में आपको पूरे अकाउंट्स यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो पहला चैप्टर आपका था जनरल एंट्री, के बाद में देखना है लेजर, लेजर के बाद में देखना है सब्सिडी बुक्स, उसके बाद में देखना है आपको ट्रायल बैलेंस, उसके बाद में देखना है आपको प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट्स, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखेंगे कि हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल एंट्री के अंदर, हाउ टू जनरलाइज द एंट्री वी सी इनटू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ, उसका आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।